کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ ریاستی عوام حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کا مشن جاری رکھیں گے۔ مذموم بھارتی منصوبوں کو ناکام بنانے کا عزم۔ حریت رہنماؤں کا شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ 50 سال کے بعد 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، ملک میں پیسہ آتا ہے تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا پاکستان میں ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7 سے 10 لاکھ روپے تک؟ 30 سال میں 2 حکمران خاندانوں نے ملک کو معاشی طور پر ناکارہ بنایا۔ پسماندہ علاقوں کی حالت بدل دیں گے۔ عام آدمی کو مہنگائی سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ 13 کروڑ افراد کو احساس راشن پروگرام کے تحت سبسڈی دیں گے۔ آنے والی نسلوں کا سوچ رہے ہیں۔ تنقید کرنے والے 5 سال بعد ہماری کارکردگی پر بات کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کا اٹک میں 200 بستر پر مشتمل جدید زچہ بچہ ہسپتال کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ انصاف کے بغیر ترقی یافتہ معاشرے کا قیام ممکن نہیں۔ وکلاء نیب آرڈیننس کو چیلنج کے بجائے حکومت کو اصلاحات تجویز کریں۔ بار اور بینچ قومی معاملات میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ وکلاء برادری کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ حکومت اس ضمن میں ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو۔ سابقہ ادوار کی بدترین پالیسیوں نے ملکی معیشت کو تباہ کیا۔ چینی کی قیمتوں میں اضافہ سٹے بازی سے ہو رہا ہے۔ شوگر ملز پر سندھ میں زرداری اور پنجاب میں شریف خاندان کی اجارہ داری ہے۔ سندھ میں 1 نومبر سے گنے کی کرشنگ میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ رواں سال گندم کی فراہمی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کھادوں پر 15 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین اور وفاقی وزیر سید فخر امام کی نیوز کانفرنس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کے سفیر نونگ رونگ اور دفاعی اتاشی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے اقدامات پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف کا علاقائی استحکام اور پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ پاکستان میں مؤثر حکومتی پالیسیوں اور ویکسینیشن سے کورونا کیسز میں نمایاں کمی۔ مثبت کیسز کی شرح 1.2% رہ گئی۔ مزید 567 نئے کیسز رپورٹ۔ 11 افراد جاں بحق۔ اموات کی مجموعی تعداد 28,518 ہو گئی۔ کورونا وبا کے شکار مریضوں کے علاج میں پیش رفت۔ دوا ساز کمپنی فائزر کی تجرباتی اینٹی وائرل دوا کے استعمال سے مہلک وائرس سے متاثر افراد کی اموات میں 90% کمی۔ دوا ساز کمپنی میرک کی تیار کی گئی گولیوں کے بھی بہتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ۔ عالمی ادارہ صحت نے یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ متاثرین کی تعداد میں 55% تک کا اضافہ۔ فروری تک 5 لاکھ مزید اموات ہو سکتی ہیں۔ WHO۔ سعودی عرب کو تقریباً 65 کروڑ امریکی ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کے سودے کی منظوری۔ سودے کے تحت امریکہ سعودی عرب کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے 280 جدید میزائل فراہم کرے گا۔ یہ ہتھیار صرف فضائی دفاع کے لیے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی شدید سموگ کی لپیٹ میں۔ دیوالی کے موقع پر پٹاخوں کی وجہ سے آلودگی پھیلی جو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مقرر کردہ حد سے 15 گنا زیادہ تھی۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا کے سب سے آلودہ 30 شہروں میں سے 22 بھارت میں ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی علاقائی ثقافت کے رنگوں سے بھرپور لوک میلہ۔ قومی لوک میلے کی صورت میں پاکستانی فن و ثقافت کے دھنک رنگوں نے اہلیان راولپنڈی اور اسلام آباد کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا ہے۔
मेले में बलूचिस्तान की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। लोक फनकारों ने अपने फन से हाजरीन से खूब दाद समेटी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तीसरी कामयाबी। शारजा में नमीबिया को 52 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। नमीबिया की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। 163 रन के जवाब में नमीबिया की टीम 7 विकेटों पर 111 रन बना सकी। मेगा इवेंट के 37वें मैच में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेटों से हराया। भारत ने 86 रन का हदफ 7वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। भारत की इवेंट में ये दूसरी कामयाबी है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। 38वें मैच में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से पहले 3 बजे अबूधाबी में मध्य मुकाबले होंगे। 39वां मैच इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान शाम 7 बजे शारजा में खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 2 में पाकिस्तान अपना 5वां मैच कल स्कॉटलैंड के खिलाफ शारजा में खेलेगा। मैच की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड का ICC एकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान अब तक के 7 T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 5वीं मर्तबा सेमीफाइनल में पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं सदफ अली खान और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शुहदाए जम्मू इस अज़्म की तशदीद के साथ मना रहे हैं कि वो अपने नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जदोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो 1947 में डोगरा फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले जम्मू के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए दुआया तक़रीब का एहतमाम करें। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के लोगों से शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक ब्लैकआउट करने की भी अपील की। उन्होंने जम्मू के लाखों मुसलमानों के कत्लेआम को इंसानी तारीख का सबसे खूनी होलोकॉस्ट करार दिया। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने शोहदाए जम्मू को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे और उनके मिशन को हर कीमत पर उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम के चेयरमैन एडवोकेट दविंदर सिंह बहल ने मकबूजा वादी में जारी एक बयान में अफसोस जाहिर किया कि भारत अपने गैर कानूनी कब्जे को तूल देने और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मकबूजा इलाके में मजीद फौजी तैनात कर रहा है। काबिज़ इंतज़ामिया ने कल एक मरतबा फिर लोगों को श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद ने एक बयान में इंतज़ामिया के इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे मुसलमानों के दीनी मामलात में खुली मदाखलत करार दिया। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर के इलाके बमना में महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके एक शहरी को ज़ख्मी कर दिया। फौजियों ने बमना के मेडिकल कॉलेज की तलाशी भी ली। ज़िला किश्तवाड़ में भारतीय पुलिस का एक एहलकार अपनी सर्विस राइफल से गोली चलने से हलाक हो गया।
6 नवंबर 1947 को जम्मू में डोगरा फोर्सेस, RSS, पटियाला फोर्सेस, सिख और हिंदू मुसल्लह जत्थों ने लाखों मुसलमानों को पाकिस्तान ले जाने के बहाने शहीद किया। जम्मू के शुहदा को खिराज अकीदत और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस दिन को यौम शुहदाए जम्मू के तौर पर मनाते हैं। इस दिन के तारीखी पस मंजर के बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदील अहमद। 1947 में जब तकसीम बर्र सगीर का ऐलान हुआ तो कश्मीर में अक़लियतों को ये फ़िक्र दामनगीर हुई कि उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। लिहाजा उन्होंने हिंदू महासभा और जिन सिंह के लीडरों के साथ मिलकर साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इन्हीं साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए 6 नवंबर 1947 को पाकिस्तान ले जाने के बहाने जम्मू के 2.5 लाख से ज़ायद मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्लेआम का बुनियादी मकसद जम्मू में मुस्लिम आबादी की जो अक्सरियत थी उसको अक़लियत में बदलना था, और 47 के बाद अगर आप जम्मू में जो मर्दमशुमारी हुई उसके नताइज देखें तो मुसलमानों की जो अक्सरियत थी उसको अक़लियत में बदल दिया गया। पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने अपने सरों की फसलें कटवा कर कफन का लिबास ज़ेबत कर दिया। कश्मीरी अवाम हर साल 6 नवंबर का दिन यौम शुहदाए जम्मू के तौर पर मनाते हैं। इस दिन की मुनासबत से रियासत गिर जलसे जुलूसों, एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़िम वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने यौम शुहदाए जम्मू पर अपने बयान में कहा कि 6 नवंबर 1947 को भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ गिराए, लाखों मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि सानहा जम्मू की याद में आज यौम शुहदा भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में शुहदाए जम्मू कश्मीर को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सतह पर मज़लूम और निहत्ते कश्मीरियों का मुक़द्दमा उसी जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी करके जोग्राफियाई तब्दीली पर आलमी बिरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो आने वाले इंतखाबात पर तवज्जो देने की बजाय आइंदा नस्ल के बेहतर और महफूज मुस्तक़बिल के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद अवाम इस बात का तयन कर सकेगी कि कौम के शानदार मुस्तक़बिल के लिए मौजूदा हुकूमत ने दूररस इक़दाम किए। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। अटक में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पीछे रह जाने वाले इलाकों की तरक्की और पसमानदा तबके की खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हम आइंदा इंतखाबात की बजाय आने वाली नस्लों के बेहतर और महफूज मुस्तकबिल के लिए दूररस इक़दामात कर रहे हैं। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की, क्या हमने अपने मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर थे। जिस तरह 50 साल के बाद 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, मुल्क में पैसा आता है तो मुल्क की दौलत में इजाफा होता है। कभी किसी ने सोचा था पाकिस्तान में हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी 7 से 10 लाख रुपए तक? जो पाकिस्तान का कमजोर गरीब तबका, उनको मौका ही नहीं मिला पाकिस्तान की तरक्की में शरीक होने का। मैं ये चाहता हूं कि 5 साल के बाद ये जो कमज़ोर तबके और कमज़ोर इलाके हैं, अगर ये खुशहाल हो जाएं, अगर इनकी ज़िंदगियां बेहतर हो जाएं, तो मैं समझूंगा कि हम कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुल्क की 13 करोड़ की आबादी को एहसास प्रोग्राम के जरिए आटे, घी और दाल की मद में 30% सब्सिडी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वाले माफियाज के खिलाफ जहाद जारी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना वबा के बाइस दुनिया को कसाद बाजारी का सामना है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत माशी चैलेंजेस के अलावा आलमी सतह पर एशाए ज़रूरिया की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया है, जिसका असर पाकिस्तान को भी पहुँच रहा है। हमने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं कि अपने लोगों को हम इस महंगाई से बचाएं। पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुँच गई। पता चला 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी शुरू कर दी। जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है क्योंकि इन्होंने मिल्क के कीमतें ऊपर की थी, कार्टलाइजेशन की थी, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पे ये विकेट करें स्टे ऑर्डर। ये जुल्म है हमारी आवाम से
कि ये शुगर माफिया मिल के अरबों रुपया कमा लेता है अवाम की कमर तोड़ के। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के तमाम इलाकों की यकसां तरक्की हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम शहरियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दायरा कार में लाने के लिए 31 दिसंबर से हेल्थ कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू हो रहा है, जिसके लिए 322 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पंजाब के 8 अजला में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड के इजरा से अवाम को मुफ्त इलाज मुआलजे की म्यारी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने अटक पहुंचने पर 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम को बताया गया कि 75 कनाल अराजी पर तामीर किए जाने वाले इस अस्पताल के लिए 5 अरब 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबा 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, जिससे 2 से 3 लाख खवातीन को सालाना इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाना वजीर आजम इमरान खान के विजन का महवर है, जिसमें अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की म्यारी सहूलियात की फ्राहमी तरजीहात में शामिल है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अटक। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात, नैब ऑर्डिनेंस समेत दीगर अहम कानून साजी में वकला और बार एसोसिएशन के किरदार का खैर मकदम करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के बजाय हुकूमत को इस्लाहात तजवीज़ करें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन मोहन की क़यादत में नौमुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि कौमी मामलात और आईन व कानून की बालादस्ती के लिए वकला बिरादरी रहनुमाई करे। बार एसोसिएशन सियासी जमातों को बड़ी इस्लाहात पर करीब लाने में किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के दरमियान वकला पुल का किरदार अदा करते हैं, इस किरदार को कौमी मामलात में भी अपनाया जाए। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि माशरे में कानून की बालादस्ती के लिए वकला बिरादरी अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। बार एसोसिएशन को अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अपनी काविशें बरूए कार लाना होगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इंसाफ के बगैर तरक्की याफ्ता माशरे का क़याम मुमकिन नहीं। हम वकला बिरादरी को दरपेश मसाइल हल करेंगे। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वकला बिरादरी की फलाह बहबूद हमारी अवलीन तरजीह है। हुकूमत इस ज़िम्मे में हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान को हालिया इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि अदलिया की बका के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। वकला बिरादरी ने हम पर जिस एतमाद का इजहार किया है, इंशाअल्लाह इस पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि साबका अदवार की बदतरीन पॉलिसियों ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर के शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे हैं। सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि ज़रई अजनास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत की मौसर ज़रई पॉलिसी का नतीजा है। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि साबिका हुकूमतों की पॉलिसियों का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की वजह से सिंध का बुरा हाल है। ज़्यादातर जो शुगर मिलें हैं वो सारी जो सिंध में हैं वो जरदारी साहब के अंडर है, जो पंजाब में हैं वो शरीफ फैमिली के अंडर है। चीनी सिंध में सबसे ज़्यादा महंगी है। सिंध हुकूमत अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे कि आखिर उन्होंने पहले गंदम रिलीज़ नहीं की और अब वो वहाँ पर जो चीनी की क्रशिंग है वो शुरू नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के पास ही तकरीबन 1,30,000 टन जो शुगर है वो मौजूद है। 22 दिनों के लिए ये चीनी काफ़ी है जो हमारे पास है। 3 साल में आपने जो इतने बड़े करतूत हैं इनके वो सही नहीं हो सकते। वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम ने कहा कि रवा साल 3 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। उन्होंने कहा कि गंदम की इमदादी कीमत 1,950 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। वफाकी वजीर का कहना था कि खादों पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। गंदम की पैदावार इस साल 27.5 मिलियन टन हुई। आज भी हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 5 मिलियन टन के करीब हैं और हमने कुछ गंदम इस साल इंपोर्ट भी किया। बाकी हमारा धान जो है राइस उसकी भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। शुगर केन में सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन थी पिछले साल 81 लाख टन, वो बढ़कर अब 87 लाख टन हम समझते हैं होगी। ये बड़ी बदकिस्मती है कि चंद अफराद इस मुल्क में होर्डिंग करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आम शहरी को पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर वज़ीर इत्तलात का कहना था कि आलमी मंडी में बहरानी कफियत की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों का असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने टैक्सों को इस वक्त सबसे कम तरीन सतह पर रखा हुआ है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ پائیدار جامع منصوبہ بندی کے ذریعے معاشی اہداف کے حصول کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کراچی میں 18ویں چارٹرڈ فائنینشیل اکاؤنٹنٹس انالیسز ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ نے کہا کہ 22 کروڑ کی آبادی کے لیے سالانہ بنیادوں پر 20 سے 30 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پائیدار ترقی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب آدمی کو سہولت پہنچانے کے لیے خصوصی طور پر پیکج کا اعلان کیا گیا، جس میں گھروں کے لیے آسان شرائط پر پہلی مرتبہ سستے ترین قرضے دیے گئے، جبکہ ہیلتھ انشورنس کارڈ، بزنس لون اور مائکرو فائنانس لونز بھی دیے گئے ہیں۔ مشیر خزانہ نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں ایوارڈز اور شیلڈز تقسیم کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ اور دفاعی اتاشی میجر جنرل یونگ نے GHQ میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، افغان امن عمل سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے علاقائی استحکام اور پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے دفاعی اتاشی کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ معزز مہمانوں نے سی پیک کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے اور علاقائی استحکام کی کوششوں کے لیے کیے گئے خصوصی اقدامات پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ مؤثر حکومتی اقدامات سے پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح 1.1% رہ گئی۔ ملک بھر میں کرونا سے ایک دن میں 11 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,518 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,918 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,24,870 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 12,993، سندھ میں 7,582، خیبر پختونخوا میں 5,765، اسلام آباد میں 944، بلوچستان میں 357، گلگت بلتستان میں 186 اور آزاد کشمیر میں 741 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوا ساز کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اس کی تجرباتی اینٹی وائرل دوا کے استعمال سے اموات میں 90% کمی ہوئی ہے۔ فائزر نے کہا کہ وہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو اپنی دوا کی جلد از جلد منظوری کے لیے کہے گا، تاہم اس پر فیصلہ ہونے میں کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ایک اور دوا ساز کمپنی میرک نے بھی اس وبا کے علاج کے لیے گولیاں تیار کی ہیں، جس کے نتائج بہتر رہے ہیں۔ طبی ماہرین ایسی دوا کی تلاش میں تھے جسے گھر پر استعمال کیا جا سکے تاکہ مریض کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یورپ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک بار پھر بڑھ رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے فروری تک 5 لاکھ ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سمیع اللہ۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں کرونا سے متاثرین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر فروری تک 5 لاکھ مزید اموات ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اس صورتحال کی ذمہ داری ویکسین نہ لگوانے کو قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسپین میں 80% لوگوں کو دوبارہ ویکسین لگائی جا چکی ہے، مگر فرانس اور جرمنی میں یہ تعداد بالترتیب 68 اور 66% رہی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ پنجاب سے ڈینگی کے 561 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 436 مریض لاہور سے، جبکہ راولپنڈی سے 40، گجرانوالہ سے 13، شیخوپورہ سے 10، فیصل آباد سے 7، قصور سے 6، بہاول نگر سے 5، اٹک، ننکانہ صاحب اور نارووال سے 4، بہاولپور، حافظ آباد سے 3 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب سے ڈینگی کیسز کی تعداد 12,860 ہو چکی ہے۔ رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی سے 63 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ روز ڈینگی بخار سے 4 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ صوبہ بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 2285 مریض داخل ہیں، جن میں سے لاہور کے ہسپتالوں میں 1562 مریض داخل ہوئے ہیں۔ پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے مریضوں کے لیے 5436 بستر مختص ہیں۔ ڈینگی کے مریضوں کی آسانی کے لیے لاہور کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں ڈینگی کی کیسز کی تعداد 6,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ ہمارے پاس جو ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے محکمہ صحت کی جانب سے، جرمہ شہروں میں اگر سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کی جائے تو لاسٹ 24 آورز میں 51 کیسز جو ہیں وہ ڈینگی کے رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل کیسز جو اسلام آباد شہر کے اندر 4,657 ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے ریشو کی بات کی جائے تو آلموسٹ 60 to 40% کا ڈفرنس ہے۔ 60% کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد رورل ایریا سے آ رہے ہیں، جبکہ 40% جو اسلام آباد مین سٹی کے ہیں۔ راولپنڈی شہر کی بات کی جائے تو لاسٹ 24 آورز میں جو ہیں 37 کیسز ڈینگی کے رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس طرح جو ٹیلی ہے وہ 1980 یعنی آلموسٹ 2000 کے قریب جو ہیں وہ ڈینگی کیسز راولپنڈی ریجن میں، راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل اگر بات کی جائے راولپنڈی اسلام آباد کی تو 6637 کیسز جو ہیں وہ اب تک ہو چکے ہیں۔
تو دونوں شہروں کی جو انتظامیہ ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اقدامات کو بھی تیز کر دیا ہے اور متعدد علاقوں میں ان کی جو تشکیل کردہ ٹیمیں ہیں وہ جا کر وزٹ بھی کر رہی ہیں. جو لاروا فیڈنگ سائٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ بھی کیا جا رہا ہے, لاروے کو تلف بھی کیا جا رہا ہے, اور بالخصوص میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو فیومیگیشن ایکٹیویٹیز ہیں, اسپرے ہے, وہ بھی بھرپور انداز میں جاری ہے. ناظرین, کرونا وبا کے باوجود حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت معیشت ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہے. اصلاحاتی اقدامات کے ذریعے رواں مالی سال کے ترقیاتی اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد. موجودہ حکومت نے رواں مالی سال ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے, اقتصادی و تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مختلف شعبوں میں بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں. زراعت, صنعت, خدمات اور برآمدات کے شعبوں میں ترقی کے ساتھ ٹیکس وصولی اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے. تعمیرات کے شعبے کو پیکیج اور کامیاب پاکستان پروگرام کے ذریعے سستے قرضوں کی فراہمی سے نوجوان اپنے کاروبار کے مالک بن رہے ہیں. 20 ارب روپے سے زیادہ کے چھوٹے کاروبار کے لیے نوجوانوں کو قرضے دیے جا چکے ہیں. اس کے اندر لاکھوں نوجوان جو ہیں ان کو ہنر کی تعلیم دی جا رہی ہے. صحت کا جو بجٹ ہے اس میں تو کوئی 8-10 گنا اضافہ کیا گیا, اور پچھلے سال جو ہے وہ 50 ارب روپے کے ہیلتھ کیئر سسٹم اپ گریڈ کے لیے چاروں صوبوں کے اندر وفاق کے پیسے سے وہ کام کیا گیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ پچھلے 3 سال میں 2.5 گنا اس کے اندر اضافہ کیا گیا. ماحولیات کے اندر جو اس وقت انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, جو انڈسٹریز کے لیے PSDP کی ایلوکیشن ہے, جو زراعت کے لیے ایلوکیشن ہے, ان تمام کے اندر جو ہے خاطر خواہ اضافہ نظر آ رہا ہے. ملک بھر میں یکساں ترقی کے لیے پسماندہ علاقوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبوں کے ساتھ بڑے ڈیموں کی تعمیر کا بھی آغاز کیا گیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 بڑے ڈیمز کے اوپر ایک ساتھ کام ہو رہا ہے. موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر جتنی سڑکیں بنی ہیں ہمارے 3 سال میں وہ پچھلے 5 سال کے اندر نہیں بنی تھی. یکساں طریقے سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. بلوچستان کے اضلاع ہیں, سندھ کے اندر کے اضلاع ہیں, گلگت بلتستان ہے, کراچی کے لیے ایک بڑا پیکیج ہے. تو 4 وزیر اعظم کے خصوصی ترقیاتی پیکیجز ہیں جن کے اوپر ایک ساتھ کام ہو رہا ہے اس وقت. حکومت اصلاحات کے ذریعے پسماندہ طبقے کو اوپر اٹھانے, ملک کو خود کفیل اور خوشحال بنانے کے لیے پرعزم ہے. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اور اب آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں اسلامی امارت حکومتی کابینہ میں تبدیلیاں کر رہی ہے. حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی کہتے ہیں کہ کابینہ میں پیشہ ور عہدیداروں کے تقرر کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کابینہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے اور اس میں معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو شامل کیا جائے گا. افغانستان کے صوبے ننگرہار میں داعش کے 55 جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. حکام نے بتایا کہ یہ جنگجو صوبے کے 3 مختلف اضلاع میں سرگرم تھے. جنگجوؤں نے قبائلی سرداروں کی مداخلت کے نتیجے میں ہتھیار ڈالے ہیں. انہوں نے قومی دھارے میں شامل ہو کر تخریبی سرگرمیاں ترک کرنے کا عہد کیا ہے. افغانستان میں حالیہ حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی. ناظرین, پنجاب میں چینی کی مقررہ قیمت پر دستیابی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف صوبے بھر میں حکومت متحرک ہو گئی ہے. اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر لاہور, سرگودھا, ساہیوال, فیصل آباد, رحیم یار خان, شیخوپورہ, منچن آباد, حاصل پور, خانیوال, جہانیہ اور کبیر والا میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے. سرگودھا اور فیصل آباد میں 2 شوگر ملیں سیل کر دی گئی. مختلف شہروں میں بڑی مقدار میں ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر لی گئی. لاہور میں 100 تھیلے, سرگودھا میں 480 تھیلے, ساہیوال میں 960 تھیلے, رحیم یار خان میں 7,785 میٹرک ٹن چینی سرکاری تحویل میں لے لی گئی. شیخوپورہ میں چینی ذخیرہ کرنے والے اور مہنگے داموں فروخت کرنے پر 5 افراد پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا, جبکہ 2 دکانیں اور 1 گودام کو بھی سیل کیا گیا. بڑی کارروائی منچن آباد میں انتظامیہ نے کی, جہاں گورنمنٹ سبسڈی کے 4,000 چینی کے تھیلوں سمیت 9,000 تھیلے برآمد ہوئے, جس کی مالیت 3 کروڑ 55 لاکھ تھی. حاصل پور میں 7 ذخیرہ اندوزوں کو گرفتار کر کے گوداموں کو سیل کر دیا گیا. خانیوال, کبیر والا اور جہانیہ میں درجنوں دکانداروں پر زائد قیمت پر چینی فروخت کرنے پر جرمانے کیے گئے. کراچی کے علاقے ملیر میں منگوٹ میں غیر ملکیوں کو شکار سے روکنے پر نوجوان ناظم جوکھیوں کے قتل کے ملزم رکن سندھ اسمبلی جام اویس گہرام اور دوسرے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ. پولیس نے قتل کے تحقیقات کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. تفصیل بتا رہے ہیں سشان احمد خان. کراچی کے علاقے ملیر میں منگوٹ میں نوجوان ناظم جوکھیوں کو علاقے کے بااثر وڈیرے اور اثر و رسوخ رکھنے والوں نے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنا کر موت کی نیند سلا دیا. مقتول ناظم جوکھیوں کا صرف یہ جرم تھا
कि इसने रुकने सिंध असम्बली जाम ओवैस के मेहमानों को शिकार से रोकने की कोशिश की और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। बाद में मकतूल नाजिम की तशद्दुद ज़दा लाश मलिर मेमन गोड़ से मिली। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख की मुदाखलत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा राजा अजहर ने मलिर मेमन गोड़ थाने में वर्षा के हमरा कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। कत्ल और मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मकतूल के अहल खाना और अहल मोहल्ला ने नेशनल हाईवे पर धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा किया और कत्ल में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सख्त अवामी दबाव देखने में आया। मुलजिम जाम ओवैस गोहराम ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। जाम ओवैस गोहराम और दीगर 2 गिरफ्तार मुलजिमान हैदर और मीर अली को मलिर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुक्काम ने कत्ल के मामले पर 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी है। इंतहाई तशद्दुद किया, मेरे भाई को कत्ल कर दिया उसने। वो MP है मुंतखब PS 79 साकरो ठट्टा से, पीपल्स पार्टी का है। मुझे आप सबसे ये अपील करनी है कि जाम गोहराम ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, ज्यादती की है, मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ताज़ियत के लिए मकतूल के इलाके मलिर के आचार सालार गाँव गए। उन्होंने मकतूल के वर्सा को यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के दीगर रहनुमाओं के हमरा जाबहक नाजिम जोखियों के घर गए और उनके वर्सा से ताज़ियत की। इस मौके पर हलीम आदिल शेख का कहना था कि मकतूल नाजिम जोखियों ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि जहां गरीबों के साथ जुल्म होगा और वर्सा को जरूरत होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 के लिए इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। पहले मरहले में इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक का अमल 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। दूसरा मरहला 26 जनवरी से 11 मार्च 2022 पर मुहित होगा। इस मरहले में इंतखाबी फहरिस्तों को डिस्प्ले सेंटर्स में आवेज़ा किया जाएगा ताकि अवाम इनका मुआयना कर सकें और अगर इनका वोट इंतखाबी फहरिस्तों में दर्ज नहीं है तो वो अपने वोट का इंदराज करवाएं। अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजें, आपको फौरन आपके वोट से मुताल्लिक मालूमात मिल जाएंगी। मकबूजा रियासत के दारुल हुकूमत जम्मू में 6 नवंबर 1947 में वहां के लाखों निहत्ते मुसलमान शहरियों की मजलूमाना शहादत की याद में मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी शहीद चौक से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर शहदाए जम्मू की याद में जुमले दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि जम्मू के वो मजलूम मुसलमान जिन्हें उनके शहरों, गाँव, बस्तियों और घरों से हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्दों, सिख बुलवाइयों और डोगरा राज के सिपाहियों ने निकाल कर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया, उन शहदा की दर्द भरी यादें आज भी मुसलमानों के दिलों में महफूज हैं। मुकर्रीन ने शहदाए जम्मू को सलाम, आज़ादी और पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद, हिजरत और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज भी भारत एक जारह और दहशतगर्द रियासत के तौर पर मकबूजा वादी कश्मीर में उसी दहशत पसंदाना रविश को इख्तियार किए हुए है। मुकर्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल, OIC और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और एशिया वॉच से मुतालबा किया कि वो 6 नवंबर 1947 के कत्लेआम और 1990 की दहाई के बाद कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेकर लाखों मुस्लिम शहरियों के कत्लेआम की तहकीक करके मुजरिमों को करार वाकई सजा दे। मुल्तान में निश्चित अस्पताल के कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में जदीद तरीन मशीनरी नस्ब कर दी गई है। सरतान के मरीजों को आइंदा चंद माह में इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब होंगी। तफसील बता रहे हैं मुल्तान से फरहान मिर्जा। कैंसर जैसे मुजी मर्ज के इलाज के लिए जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मरीजों को लाहौर या कराची तक जाना पड़ता था। मौजूदा हुकूमत ने इस तकलीफ के अजाले, बीमारी के तदारुक और तशखीस और इलाज की मुकामी सतह पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए निश्तर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का बीड़ा अपने सर लिया। 2008 से तहतुल का शिकार इस मंसूबे का तामीराती काम मुकम्मल करने के बाद इसमें लीनियर एक्सीलरेटर, सेम्युलेटर्स और दीगर जरूरी जदीद तरीन मशीनरी नस्ब कर दी गई है। ट्रीटमेंट सेंटर को मुकम्मल तौर पर फहाल बनाने में मजीद 3 माह का अरसा दरकार होगा। जब ये पूरा बिल्डिंग बन जाएगी 5 फ्लोर, तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू हो जाएगी और फिर कोई ऐसा कैंसर नहीं होगा जिसका कि यहाँ पे हम इलाज ना कर पाए। हमने इस इदारे में रेडिएशन के कभी कोई चार्जेस नहीं किए और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी यही कोशिश करेंगे कि गरीब मरीज़ों को टोटल फ्री
रेडिएशन करें। शौकत खानम अस्पताल जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट निश्तर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर के क़याम से जनूबी पंजाब समेत अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के लाखों मरीजों को लाहौर या कराची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंसूबे के फेज 2 के तहत इमारत को तोसी दी जाएगी और मजीद जदीद मशीनरी नस्ब की जाएगी। निश्तर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में जदीद मशीनरी की मदद से कैंसर की बरवक्त तशखीस की जा सकेगी, जबकि इस मेगा प्रोजेक्ट की तामीर और मशीनरी की तनसीब पर 65 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जा चुके हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के वस्त में शक्करपड़ियाँ के मकाम पर 100 साल पुरानी मस्जिद दरियाफ्त हुई है, जिसकी दीवारें, कमरे और सहन बिल्कुल असली हालत में मौजूद हैं। मस्जिद की हुदूद में मौजूद 500 साल कदीम बरगद का दरख्त भी पुराने दौर की याद दिलाता है। CDA ने इस कीमती असासे की बहाली का फैसला किया है। मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ये इस्लामाबाद का मुकाम शक्करपड़ियाँ हैं, जहाँ कवल झील बनाने के दौरान एक ऐसा कीमती असासा मिल गया जो बेमिसाल शाहकार है। सौ साल पुरानी इस मस्जिद की तामीर मुगलिया तर्ज पर की गई है। मस्जिद के 2 कमरे और कुशादा सहन है। वजू के लिए पानी की टैंकी भी है, जिसकी तामीर में सर्द मौसम का ख्याल रखते हुए पानी को गर्म करने का बंदोबस्त भी नजर आता है। मस्जिद के सहन में मौजूद इस बरगद के घने दरख्त के बारे में गुमान किया जाता है कि ये 500 साल कदीम है। वक्त के आर्किटेक्ट के मुताबिक उसको डिज़ाइन करके उसको जो है रेनोवेट करवाया जाएगा और उसको कोशिश की जाएगी कि उसका ओरिजिनल जो फ्रेम मौजूद है उनको उसी शेप में बहाल रखा जाए, ताकि लोग आने वाले जो हमारी नस्लें हैं वो भी इस जो उनका पुराना असासा है उनको आके देखें और उनसे लर्न कर सकें। ये मस्जिद पेरान के देहातों के लिए तामीर की गई थी, जिन्हें 1960 की दहाई में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बनाए जाने के पेश नज़र इलाके से बाहर मुंतकिल किया गया था। सदियों इस जगह आबाद रहने वाले गांव के निशान तो अब बाकी नहीं, लेकिन 100 साल पुरानी इस मस्जिद से बहुत जल्द अल्लाह अकबर की सदा सुनाई देगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इलाकाई सकाफत के रंगों से भरपूर लोक मेला इस्लामाबाद में जारी है। मेले में बलूचिस्तान की सकाफत को उजागर किया गया और लोक फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। लोक वर्षा इस्लामाबाद में बलूचिस्तान की सकाफत की झलक दिखाता खूबसूरत स्टेज, ढोलक की थाप और दंबूरे के साथ बलोची मौसीकी की खूबसूरत महफिल सजाई गई। बलोची म्यूजिकल नाइट में फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल मोह लिए। फनकारों ने सरोज के तार छेड़े तो शुरका झूम उठे। लोगों का कहना था कि ऐसी तकरीबात इलाकाई सकाफत से आगही का जरिया हैं। कावी, ज़ारगी, तमाम जुबानों का म्यूजिक है, बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आया। साथ सारे बहुत स्पेशल हैं, बहुत दूर दूर से ये लोग सारे आए हुए हैं और बहुत अच्छा बजा रहे हैं। हम बलूचिस्तान से आकर जो है इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तकरीब में ग्लोकारों ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया, जिससे शुरका खूब लुत्फ अंदोज हुए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और कौमी लोक मेले की सूरत में पाकिस्तानी फ़न व सकाफ़त के धनक रंगों ने अहलियान रावलपिंडी और इस्लामाबाद को अपने शहर में जकड़े रखा। तफसील बता रही हैं साइमा अली अपनी इस रिपोर्ट। इस्लामाबाद लोक विरसा में जारी सकाफती मेले में पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाकाई सकाफतों और तहजीब को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया। वादी मेहरान सिंध के रंगीन और सदियों पुरानी सकाफत की झलक भी पेश की गई। सिंधी टोपी और अजरक में मलबूस गुलकारों और फनकारों ने अपने फन का शानदार मुजाहरा किया। सिंधी लोक गुलकारों ने रिवायती साजों पर लोक गीत पेश किए, जिनको शुरका ने बहुत सराहा।
फेस्टिवल में आके काफ़ी ज़्यादा मुझे नॉलेज मिली है सिंध कल्चर के हवाले से। अवाम का जोशो खरोश बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और ख़ुसूसन सिंधी कल्चर के दिन जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो एक्टिविटी यहाँ होती है ईयरली बेसिस पे उसको हम खूब इंजॉय करते हैं, फैमिलियों के साथ आते हैं। सिंधी महफिल मौसीकी ने नवंबर की ठंडी शाम को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए यादगार बना दिया। सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब और सकाफत हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देती रही है। साइमा अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती आलूगी के मसाइल से दो चार है। ये मसाइल किसी और के नहीं बल्कि इंसान के पैदा करता है। आलूदा माहौल के असरात और इसके तदारुक के हवाले से देखते हैं इकरा ताहिर की रिपोर्ट। कुदरती माहौल नबातात और हैवानात की अफजाइश नस्ल के लिए अहम तरीन जुज़ है। साफ सुथरा माहौल ही तमाम मनाजिर को दिलफरेब बनाता है। आज कुर्राए अर्ज़ को माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ अनदेखे खतरात का सामना है। माजी में इस बात पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी गई जिसके नताइज माहौलियाती आलूदगी की सूरत में सामने आए। जगह जगह नज़र आता कूड़ा करकट न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करता है बल्कि नबातात पर भी अपने मनफी असरात मुरतब करता नज़र आता है। हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपनी गली मोहल्ले में कूड़ा करकट के जगह जगह ना फेंकने चाहिए और जहाँ भी दिखना चाहिए उसे साफ़ सुथरा करना चाहिए। प्लास्टिक बैग सहूलत के बजाय जहमत बन गए। गंदे नालों के आम बहाव ने ज़ेरे ज़मीन पानी को भी काबिल इस्तेमाल नहीं छोड़ा। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने कई अहम इक़दाम उठाए। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, कराची के गंदे नालों की सफाई और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान जैसी कई मुहिम चलाई जिनकी बदौलत कुदरती हुस्न की बहाली मुतवक्के है। साफ और शफाफ माहौल फराहम करना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा भी अखलाकी फर्ज है। इकरा ताहिर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसल खाने के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के हवाले से तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत में पेश रहने वाले सिफारती अमले में एजाज़ी शील्ड्स और तारीफ़ी असनाद तकसीम की गईं। PTI स्पेन के सदर मोहम्मद शिराज भट्टी ने काउंसिल जनरल इमरान अली चौधरी और आमना उमर को उनकी खिदमात के पेश नज़र एजाज़ी शील्ड्स पेश की। काउंसिल खाने के अमले में शामिल ख़वातीन को भी उनकी खिदमात के पेश नज़र तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स पेश किए गए। IG नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इनाम गनी कहते हैं कि पेशा वराना तरबियत फोर्स की सलाहियतों को और काबिलियत को उजागर करती है और इदारों की कामयाबी का सबब बनती है। शेखुपुरा में मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज दौरे के मौके पर पुलिस के अफसरान और जवानों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मोटरवे पुलिस की तरबियत के मयार को बेहतर बनाएंगे और मोटरवे पुलिस अफसरान के लिए IT टेक्नोलॉजी की तरबियत को लाजमी करार दिया जाएगा। IG मोटरवे पुलिस ने ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया और शुहदा की यादगार का भी दौरा किया। उन्होंने यादगार पर फूल रखे और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि सऊदी अरब को तकरीबन 65 करोड़ अमरीकी डॉलर के हथियार फरोख्त करने के एक सौदे की मंजूरी दे दी गई है। इस सौदे के तहत अमरीका सऊदी अरब को फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले 280 जदीद मिसाइल फराहम करेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये हथियार सिर्फ फ़ज़ाई दिफा के लिए हैं। ईरान ने 60% तक अफज़ोदा यूरेनियम का 25 किलो ज़ख़ीरा कर लिया है। ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान बहरोज़ कमाल बंदी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि अब तक जोहरी हथियारों के हामिल मुल्कों के अलावा कोई भी मुल्क इतनी मिक़दार में अफज़ोदा यूरेनियम ज़ख़ीरा नहीं कर सका है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में एक शख्स हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। गुज़श्ता माह होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में ईरान नवाज तंजीम हशदुल शाबी के सियासी विंग की नशिस्तों की तादाद कम हुई है जिसे ग्रुप के हामियों ने धांधली करार दिया और इसके सैकड़ों हामियों ने बगदाद में सख्त सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन के करीब मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने एक कमेटी कायम करने का हुक्म दिया है जो झड़पों की तहकीकात करेगी। नाज़रीन, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली शदीद स्मॉग की लपेट में है। दिवाली के मौके पर पटाखों की वजह से आलूदगी फैली जो आलमी इदारे सेहत की जानिब से मुकर्रर करदा हद से 15 गुना ज़्यादा थी। मुल्क की आला तरीन अदालत ने दिल्ली में पटाखों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा रखी थी और हुक्काम ने अवाम से अपील की थी कि वो इस बार दिवाली बम पटाखों के बगैर मनाएं।
ताहम इस पर मौसल अमल दरामद नहीं हो सका। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा 30 शहरों में से 22 भारत में है। आलमी सतह पर अदब का मुमताज़ बरतानवी इनाम जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले डेमन गैगलेट ने हासिल कर लिया है। बुकर प्राइज़ के लिए किताब का इंतखाब करने वाले जजेस का कहना है कि यह किताब मिरास के बारे में है और इस बात पर बहस की गई है कि मिरास हमें किसी से मिलती है या हम दूसरों के लिए छोड़ कर जाते हैं। डेमिन गिलगेट जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले ड्रामा निगार हैं। वो 2 मरतबा पहले भी बुकर प्राइज़ के लिए नामजद हो चुके थे और तीसरी बार इनाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहा। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद अजला में हल्की बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। लेह में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।